آپ کو بتائیں کہ SMW5 میرین کیبل میں خرابی کراچی سمیت ملک بھر میں انٹرنیٹ سروس متاثر۔ PTA کے مطابق صارفین کو انٹرنیٹ کی رفتار میں تعطل کا سامنا ہو سکتا ہے۔ انٹرنیٹ ٹریفک میں خلل پر مسلسل نظر رکھی جا رہی ہے۔ آپ کو یہاں پر اپڈیٹ کرتے ہیں کہ SMW5 میرین سب کیبل میں خرابی آ گئی ہے، جس سے کراچی سمیت ملک بھر میں انٹرنیٹ سروس متاثر ہو رہی ہے۔ مزید اسی حوالے سے جانتے ہیں بیورو چیف اشرف خان سے۔ جی اشرف خان، آگاہ کیجیے گا۔ جی دیکھا جائے آج شام سے جو ہے کراچی سمیت ملک بھر میں جو ہے انٹرنیٹ کیبل کے مسائل کا سامنا تھا صارفین کو، جس پر PTA نے اہم بیان جاری کیا جس میں بتایا کہ SMW5 سب میرین کیبل میں خرابی آئی ہے اور ملک میں انٹرنیٹ ٹریفک متاثر ہوا ہے۔ PTA کی جانب سے انٹرنیٹ صورتحال کے مسلسل نگرانی کی جا رہی ہے۔ PTA کا کہنا ہے کہ بعض صارفین کو انٹرنیٹ رفتار اور کنیکٹیوٹی میں عارضی مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے۔ خرابی کے باعث انٹرنیٹ سروس کے معیار میں وقتاً کمی کا امکان ہے، اور PTA کا کہنا ہے کہ ٹرانس ورلڈ ایسوسیٹس اور SMW5 کنسورشیم خرابی دور کرنے میں مصروف ہیں اور خرابی کی بنیادی وجہ اور بحالی کے وقت کا تعین کیا جا رہا ہے۔ انٹرنیٹ جو ہے ٹریفک متبادل بین الاقوامی روابط کے ذریعے منتقل کی جا رہی ہے۔ متبادل راستوں سے انٹرنیٹ خدمات کی فراہمی جاری ہے اور PTA کا متعلقہ اداروں کے ساتھ مل کے مسلسل رابطے میں ہے اور ملک بھر میں انٹرنیٹ خدمات کی جلد مکمل بحالی کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ جی اشرف خان، ساتھ رہیے گا۔ اسٹیٹ بینک کے زر مدام مبادلہ ذخائر میں ایک ہفتے کے دوران 61 کروڑ 10 لاکھ ڈالر کا اضافہ، ذخائر بڑھ کر 16 ارب 52 کروڑ 72 لاکھ ڈالر ہو گئے ہیں۔ مزید اسی حوالے سے جانتے ہیں بیورو چیف اشرف خان سے۔ جی اشرف خان، آگاہ کیجیے گا۔ جی دیکھا جائے اسٹیٹ بینک نے ہفتہ وار زر مبادلہ کے ذخائر کی رپورٹ جاری کی ہے، جس میں بتایا کہ ایک ہفتے میں اسٹیٹ بینک کے ذخائر میں 61 کروڑ 10 لاکھ ڈالر کا اضافہ ہوا ہے۔ اسٹیٹ بینک کے ذخائر بڑھ کر 16 ارب 52 کروڑ 72 لاکھ ڈالر پر تجاوز کر گئے ہیں۔ ساتھ ہی اس دوران کمرشل بینکوں کے ذخائر 5 کروڑ 10 لاکھ ڈالر کمی کے بعد 5 ارب 51 کروڑ ڈالر پر آ گئے ہیں۔ ساتھ ہی دیکھا جائے اسٹیٹ بینک اور کمرشل بینکوں کے مجموعی ذخائر جو ہیں 56 کروڑ ڈالر اضافے کے بعد 22 ارب 4 کروڑ ڈالر کی سطح پر پہنچ گئے ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ نیو کراچی کے سیکٹر 11F بسم اللہ کالونی میں مبینہ شراب خانے کے قیام کے خلاف عوامی اور بلدیاتی نمائندوں کا احتجاج سامنے آ گیا۔ نیو کراچی ٹاؤن کونسل نے اس معاملے پر مشترکہ قرارداد منظور کرتے ہوئے سندھ حکومت سے شراب خانے کا پرمٹ فوری منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ مزید تفصیلات دیکھتے ہیں رضوان احمد کی اس رپورٹ میں۔ 11F بسم اللہ کالونی میں قائم مبینہ شراب خانے کے خلاف نیو کراچی ٹاؤن کے منتخب نمائندے متحرک ہو گئے۔ ٹاؤن کونسل کے اجلاس میں تمام اراکین نے متفقہ طور پر ایک قرارداد منظور کی، جس میں موقف اختیار کیا گیا کہ رہائشی آبادی کے درمیان ایسے کاروبار سے مقامی آبادی کے تحفظات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ وائس چیئرمین نیو کراچی ٹاؤن شعیب بن ظہیر بولے، ٹاؤن کونسل کے اراکین کا کہنا ہے کہ علاقے کے مکین مسلسل اس معاملے پر آواز اٹھا رہے ہیں۔ ان کے مطابق قرارداد کے ذریعے سندھ حکومت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ عوامی اعتراضات اور مقامی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے پرمٹ کا از سر نو جائزہ لیا جائے۔ تو ایسے موقع کے اوپر ہم نے اپنی ٹاؤن سے جو ہے وہ کونسل سے قرارداد پاس کرائی ہے، جس کو ہم نے متعلقہ اداروں تک بھیج دیا ہے۔ اس کے بعد فی الفور امپلیمنٹ کرایا جائے اور شراب خانے کی پرمیشن کو جو ہے نا وہ ختم کر کے وہاں سے اس کو ختم کرایا جائے شراب خانے کو۔ یوسینو کے وائس چیئرمین کا کہنا ہے کہ متعلقہ ادارے فوری کارروائی کریں اور شراب خانے کا پرمٹ منسوخ کیا جائے تاکہ مقامی آبادی کے خدشات دور ہو سکیں۔ علاقے کے لوگوں کی رائے کو اہمیت دی جانی چاہیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ حکام اس مسئلے کا مستقل حل نکالیں۔ دیے جا رہے ہیں جس میں عوام میں غم و غصہ پایا جاتا ہے اور ان کے دھندے چل رہے ہیں، تو ہم اس کی بھرپور مخالفت کرتے ہیں اور ہم قرارداد لے کر آئے، حکومت اس کو فوری طور پر بند کرے اور پولیس کی سرپرستی اس کو ختم کیا جائے۔ مقامی نمائندوں اور شہریوں کے مطالبات کے بعد اب نظر سندھ حکومت اور متعلقہ اداروں پر مرکوز ہیں کہ وہ اس معاملے میں کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ کیمرامین واحد خان کے ساتھ رضوان احمد، سٹی 21۔ ولی کا اسپتال میں مبینہ غفلت، معصوم بچوں میں HIV وائرس پھیلنے کا معاملہ سندھ ہائی کورٹ پہنچ گیا۔ عدالت نے سیکرٹری سے سمیت متعلقہ حکام سے 2 ہفتوں میں تفصیلی رپورٹ طلب کر لی۔
मुतासरा बच्चों के अहले खाना ने इंसाफ का मुतालबा करते हुए हाई कोर्ट के बाहर एहतजाज भी किया। देखते हैं ये रिपोर्ट। गफलत की एक कहानी, मासूम जिंदगियां दांव पर लग गई। कराची के कलसूम बाईवलीका अस्पताल में मुबैना तौर पर HIV वायरस फैलने का मामला इंसाफ की दहलीज तक जा पहुंचा। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच के रूबरू समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजार के वकील तारिक मंसूर एडवोकेट ने मौक़िफ़ अपनाया कि मुबैना तौर पर इस्तेमाल सिरिंजेस दोबारा इस्तेमाल किए जाने से मुतअद्दिद मासूम बच्चे HIV वायरस का शिकार हुए। उनके मुताबिक अब तक 9 बच्चे जान की बाजी हार चुके। 8 माह गुजरने के बावजूद ना जिम्मेदारों का तयन किया गया, इंक्वायरी रिपोर्ट मंजर आम पर भी नहीं लाई गई और ना ही जाबहक बच्चों के मुकदमात दर्ज किए गए। कोर्ट ने ऑर्डर किया कि FIR होनी चाहिए, लेकिन हमारी और ये वर्षा की डिमांड ये है कि मामूली FIR से कुछ नहीं होगा। वही जो है वो कातिल और वही जो है वो मुनसिफ बन जाए, इन्वेस्टिगेशन भी उनके हाथों में हो। तो हमने जो है वो चीफ मिनिस्टर से मुतालबा किया है कि JIT बनाई जाए, जिसमें जो है वो बहुत सारी एजेंसीज, FIA वाले, ये वो सारे ले आए। वकील तारक मंसूर के जज्बाती होने पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इंसाफ हर सूरत कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक ही होगा। अदालत ने हुकूमत सिंध को हदायत की कि तमाम हकाइक पर मबनी रिपोर्ट मुकर्रर मुद्दत में अदालत के सामने पेश की जाए ताकि जिम्मेदारों का तयन किया जा सके। दूसरी जानब मुतासरा बच्चों के अहले खाना ने इंसाफ के लिए अदालत के बाहर एहतजाज किया। समाअत के दौरान अदालत ने हुकूमत सिंध से रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत 20 जुलाई तक मुलतवी कर दी। शहर में आटे की कीमतों में अचानक इजाफे के बाद फाइन आटा और चक्की आटा मजीद महंगा हो गया। ब्रांडेड फाइन आटा 200 रुपये फ़ी किलो, फाइन आटा 160 रुपये और चक्की आटा 170 रुपये ज़ायद फ़ी किलो में फरोख्त हो रहा है। मजीद देखते हैं काविश मेमन की ये रिपोर्ट। मुनाफाखोर आवाम को दोनों हाथों से लूटने लगे। आटा भी आवाम की पहुंच से दूर होने लगा। शहर में आटे की कीमतों में अचानक बड़ा इजाफा देखने में आया, जिसके बाद फाइन और चक्की आटे की कीमतें बढ़ा दी गईं। चक्की का आटा 35 रुपए फ़ी किलो जबकि फाइन आटा 30 रुपए फ़ी किलो तक महंगा हो गया है। कंपनियों का ब्रांडेड फाइन आटा 200 रुपए फ़ी किलो में फरोख्त हो रहा है, जबकि खुला फाइन आटा 160 रुपए और चक्की आटा 170 रुपए से जायद फ़ी किलो में दस्तयाब है। आटे की टेलर्स ने भी तशवीश का इजहार करते हुए फ्लोर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। महमूद खतरी का कहना है कि फ्लोर मिल्स की जानिब से आटे के नर्ख बढ़ाए जाने से दुकानदार भी शदीद परेशानी का शिकार हैं। फ्लोर मिल की जानिब से काफ़ी महंगा रिटेलर को मिल रहा है, इसकी वजह से रिटेलर भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। अब वो हर 10 दिन बाद 8 दिन बाद उनको 10-15 रुपए केजी बढ़ा के देना पड़ता है। महमूद खतरी ने मुनाफाखोरों के खिलाफ कमिश्नर कराची की कार्रवाइयों को खुश आइन करार देते हुए मुतालबा किया कि आटे की कीमतों में मसनूई इजाफा करने वालों के खिलाफ भी सख्त इकदाम किए जाएं। तो इस सिलसिले में जो कमिश्नर साहब ने जो इकदाम किया, बड़ा हम उसको मस्बत इकदाम कहेंगे। तो वो बिल्कुल अपना जो है असर रसूख इस्तेमाल करें और जो मिल मालकान है, स्पेशली जो फ्लोर मिल मालकान है, उनके ऊपर जरा सा सख्ती लेके आए। दूसरी जानिब शहरियों का कहना है कि बुनियादी जरूरत की हर चीज पहुंच से बाहर हो गई, लिहाजा मुतल्लिका हुकाम इस मसले को हल कराने के लिए मौसर इकदाम करे। कैमरामैन इमरान एके के साथ काविश मेमन, सिटी 21। कराची के मारूफ तजारती इलाके लियाकताबाद में SM तौफीक रोड की तामीर का काम तहाल मुकम्मल न हो सका। अधूरी सड़क, उड़ती धूल और गर्दो गुबार ने शहरियों और ताजरों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। शहरी सेहत के मसाइल का शिकार हैं तो दूसरी जानब कारोबारी सरगर्मियाँ भी मुतासर हो रही हैं। मज़ीद देखते हैं रिजवान अहमद की यह रिपोर्ट। शहर में एक जानिब तो तरक्याती मंसूबे शुरू नहीं होते और शुरू हो जाएं तो खत्म होने का नाम नहीं लेते। लियाकताबाद नंबर 10 से 3 तक SM तौफीक रोड पर जारी तामीराती काम सुस्त रवि का शिकार है। सड़क जगह जगह खुदी हुई है, जबकि गर्दो गुबार के बाइस इलाके का माहौल आलूदा हो चुका है। शहरियों का कहना है कि रोजाना गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों के मुताबिक उड़ती धूल और मिट्टी से आंखों, गले और सांस की बीमारियों में इजाफा हो रहा है। बुजुर्ग, बच्चे और मोटरसाइकिल सवार सबसे ज्यादा मुतासिर हैं, जबकि इलाके में सफाई और पानी के छिड़काव का मौसर इंतजाम भी नजर नहीं आता। ये परेशानी ये है कि धूड़ मिट्टी बहुत है, ये दोनों तरफ के रोड जो है लोग परेशान हैं। यहाँ रियाद कॉलेज है, ये बच्चे निकलते हैं, इतनी मिट्टी है कि बुरा हाल हो रहा है। ये लोगों को सेट करने के लिए जो है बीमार कर रहे हैं लोगों को। दूसरी जानिब ताजिरों का कहना है कि सड़क की खस्ताहाली ने कारोबार को शदीद नुकसान पहुँचाया है। उनके मुताबिक खरीदारों की बड़ी तादाद मार्केट का रुख करना छोड़ चुकी है, जिसके बायस रोजगार मुतासिर हो रहा है।
3 माह हो गए हैं और मुस्तकिल बुनियादों पे सुबह से शाम तक यही काम होता है कि वो धूल मट्टी झाड़ते रहें। अफसोस की मुझे बात ये नज़र आती है कि जो अरबाब इख्तियार हैं जिनका ये काम है, उनके कान पे जूं तक नहीं रेंग रही। हज़ारों लाखों लोग यहाँ से गुजरते हैं, मुझे ये समझ नहीं आता कि ये काम उन्होंने क्यों रोका हुआ है। शहरियों और ताजिरों ने मुताल्लिका इदारों से मुतालबा किया है कि SM तौफीक रोड की तामीर जल्द अज जल्द मुकम्मल की जाए और गर्दो गुबार पर काबू पाने के लिए फौरी इकदाम किए जाएं ताकि अवाम को दरपेश मुश्किलात का खात्मा हो सके। कैमरामैन वाहिद खान के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। अगवा होने वाली प्रिया कुमारी केस में बड़ी पेशरफ्त। सेनेट की कायमा कमेटी ने नई JIT बनाने की हदायत कर दी, जबकि अक़लियतों की इबादत गाहों और इमलाक से कब्जा ख़त्म कराने का भी हुक्म दे दिया है। मज़ीद देखते हैं आजिज़ जमाली की ये रिपोर्ट। में कमी, दरामदाद में तेजी और मईशत के लिए नए चैलेंजेस। इदारा शुमारियात की ताज़ा रिपोर्ट ने मुल्की मईशत के लिए खतरे की घंटी बजा दी। रिपोर्ट के मुताबिक जून 2026 में पाकिस्तान का तिजारती खसारा बढ़कर 4 अरब 52 करोड़ 80 लाख डॉलर तक पहुँच गया, जो गुज़िश्ता 4 बरस की बुलंद तरीन सतह है। ये खसारा मई के मुकाबले में 64%, जबकि जून गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 57% ज्यादा रहा। जून 2026 में मुल्की बरामदात 2 अरब 23 करोड़ 90 लाख डॉलर रही, जो माहाना बुनियाद पर 17% और सालाना बुनियाद पर 10% कम है। दूसरी जानिब दरामदे बिल बढ़कर 6 अरब 74 करोड़ 70 लाख डॉलर तक जा पहुंचा, जो माहाना बुनियाद पर 24%, जबकि सालाना बुनियाद पर 26% ज्यादा है। FPCCI सीनियर नायब सदर साकिब फैयाज मग्गू ने कहा है कि पोलियो के खिलाफ जंग सिर्फ वैक्सीन से नहीं बल्कि हौसले, सब्र और मजबूत एसाब से भी लड़ी जाती है। फील्ड में चैलेंज का सामना करने वाले पोलियो हेल्थ वर्कर्स की ज़हनी सेहत और पेशेवराना सलाहियतों को बेहतर बनाने के लिए ज़िला वस्ती ख़ुसूसी सेमिनार का इनेकाद किया गया है। मज़ीद देखते हैं रिजवान अहमद की रिपोर्ट में। घर पहुंचने वाले पोलियो वर्कर्स मुल्क को पोलियो से पाक बनाने का दम, ज़हनी दबाव से निपटने के लिए खुसूसी तरबियत का एहतमाम। जिला बस्ती में पोलियो हेल्थ वर्कर्स के लिए खुसूसी सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी, डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल ताहा सलीम, असिस्टेंट कमिश्नर सिब्बी माहिरीन और पोलियो प्रोग्राम से वाबस्ता अफराद ने शिरकत की। सेमिनार में पोलियो वर्कर्स और दौरान ड्यूटी पेश आने वाले ज़हनी दबाव, अवामी रवैयों, फील्ड चैलेंजेस और मौसर राब्ते के तरीकों पर तफसीली रहनुमाई फराहम की गई। बुनियादी मकसद ये है कि जो हम पोलियो के दौरान एक स्ट्रेस लेते हैं, वो स्ट्रेस न लिया जाए, उसको जो है हम स्ट्रेंथ की कन्वर्ट कर दें, क्योंकि ये बहुत अच्छा काज है और इसको हम अहमियत देनी चाहिए। जो पोलियो वर्कर्स आते हैं एज ए सोसाइटी, उनको जो हमारे सिटीजन हैं जो हम देख रहे हैं, उनको इनकरेज करना चाहिए, उनकी बच्चों की फलाह बहबूद के लिए आ रहे हैं। तो हमारा मकसद ये है कि जो वो स्ट्रेस लेते हैं, हम स्ट्रेस को कन्वर्ट करें स्ट्रेंथ में। स्पेशली जो पोलियो वर्कर्स घर घर जाते हैं, अलग अलग बातें सुनते हैं, उनकी ज़हनी सेहत जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ये सेशन रखवाया गया है। डॉक्टर सोबिया इंटीग्रल ग्लोबल से साइकोलॉजिस्ट हैं, जो डिफरेंट एक्सरसाइजेज भी बता रही हैं, जो सिर्फ इस कैंपेन में नहीं बल्कि जो उनकी पर्सनल ज़िंदगी है उसमें भी बहुत काम आएगी। मुख्तियारकार नज़माबाद सईद अहमद ने कहा कि फ्रंट लाइन पोलियो वर्कर्स इंसाद पोलियो मुहिम का सबसे अहम सतून है, इसलिए उनकी ज़हनी सेहत, पेशेवराना तरबियत और हौसला अफजा नागुज़ीर है। बाकी काफ़ी जगह मोस्टली जो है जो इश्यूज़ होते हैं, मेनली ट्रांसपोर्टेशन और लंच, वो जनाब DC साहब उनको और हम उनको प्रोवाइड करते हैं। बाकी छोटी मोटी जो इश्यूज आते हैं फील्ड में, स्ट्रेसेस डिफरेंट होते हैं, उसको कैसे रिलीज़ किया जाए, कैसे ख़त्म किया जाए, कैसे स्ट्रेस फ्री काम किया जाए, इस वजह से हमने ये एक प्रोग्राम मुनक्किद किया है। मुंतज़मीन के मुताबिक ऐसे तरबियती और आगाही सेशंस पोलियो हेल्थ वर्कर के एतमाद, हौसले और कारकर्दगी में इजाफा करते हैं, जिनसे इंसदाद पोलियो मुहिमात को मजीद मौसर बनाने में मदद मिलेगी। कैमरामैन अब्दुल वाहिद खान के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारों का इत्माद एक बार फिर बहाल। खरीदारी के रुझान ने मार्केट को मस्बत सिमत दी, जबकि हंटर इंडेक्स 470 पॉइंट के इजाफे के साथ बंद हुआ। देखते हैं काविश मेमन की रिपोर्ट। रुझान मार्केट में तेजी और सरमायाकारों के चेहरों पर इत्मीनान। स्टॉक मार्केट में कारोबार का मुस्बत इख्तिताम। कारोबारी दिन के इख्तिताम पर KSE 100 इंडेक्स 470 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 1,84,520 पॉइंट्स पर बंद हुआ। भरपूर खरीदारी के बायस इंडेक्स एक मौके पर 1,85,890 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह तक भी पहुंचा। माहिरीन के मुताबिक सरमायाकारों के एतमाद में बेहतरी और मुख्तलिफ शोबों में खरीदारी के रुझान ने मार्केट को मुस्बत जोन में बरकरार रखने में अहम किरदार अदा किया। जी देखिए, मशरिक़ वस्ती की बदलती हुई सूरत हाल अब अच्छे की तरफ जा रही है, तो इससे भी जो इन्वेस्टर है वो खासे मुतहरिक नज़र आते हैं। इसकी वजह से बाइंग हो रही है। दूसरी बात यह है कि आपने देखा होगा आज के उसमें कि इंडियन पाकिस्तान के जो बहुत सारे लोग हैं
जो अपना असर वसर रखते हैं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और मोदी को ये ख़त लिखा है कि जैसे ईरान अमेरिका बातचीत हो सकती है तो पाकिस्तान और इंडिया की क्यों नहीं हो सकती। ये भी एक अच्छा स्टेप है पाकिस्तानी मार्केटों के लिए और इंडिया की मार्केटों के लिए। तो ये अगर ये भी हो जाता है तो मार्केट इंशाल्लाह आपकी बहुत अच्छा ऊपर जाएगी। मार्केट में मजमूई तौर पर 99 करोड़ से ज्यादा शेयर्स के सौदे हुए, जिनकी मालियत 55 अरब रुपए से ज्यादा रही, जबकि मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़कर 20,630 अरब रुपए तक जा पहुंची। कैमरामैन इमरान के साथ काविश में, सिटी 21।